खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के दौरे के आखिरी दिन डिलिमिटेशन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कमीशन की चेयरपर्सन रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि मुख्तलिफ सियासी हलकों से उन्हें हासिल होने वाला रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा रहा है और समाजी और दीगर ग्रुपों से गैर मामूली अंदाज में राय हासिल हुई। मुज़ाकराती अमल खुशगवार माहौल में होने की बात कही कर उन्होंने बताया कि वो फिर से खित्ते का दौरा करेंगी। कमीशन के रुकन चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा ने हदबंदी के अमल को पेचीदा करार दिया और बताया कि 7 मजीद असेंबली हलकों की तश्कील के लिए ये अमल किया जा रहा है। 2011 की मरदूमशुमारी के मुताबिक हदबंदी करने का ऐलान किया गया है। सुशील चंद्रा के मुताबिक हदबंदी का अमल कोई रियाजियाती मश्क नहीं है, बल्कि कई पहलुओं को मद्देनजर रखना है और एक ड्राफ्ट तैयार करके उसे पहले मंजर आम पर लाना है ताकि सबको इस अमल का शिराकतदार बनाया जा सके। As part of Delimitation Commission, we are really overwhelmed by the participation of various stakeholders in large numbers who provided qualitative input during our interactions. We are here for about 3 days now and we have interacted with them and we have taken note of their suggestions, their views, and we will definitely consider all those their representations as well as whatever they have expressed to us. As you know, delimitation is a constitutional mandated exercise and we collectively have been tasked with this onerous work which we are confident of completing after following due process as laid down in the law. This is our first visit to the UT and I assure you it is not our last. We will have to come again to interact with many more people. This process of consultation is a complex exercise and this commission will take all necessary steps to continue this engagement. This occasion, let me place on record the support and assistance extended by the UT administration and all the concerned officers in making this visit successful. We acknowledge the active participation of all the political parties at Srinagar, Jammu, Anantnag and Kishtwar where we went, and all the DOs and their teams, all of officials facilitated this exercise. As usual, media has been a great support in creating a conducive environment for this process. The Commission heard from all the groups in person. Some of the important points which these groups have made, because we have heard in person to them and we came to know certain more inputs given by them. Number one, they are quite happy to participate in the delimitation process. First time people from ground have been given opportunity to put forward their views in delimitation. This visit of the Commission was to ascertain the ground realities of the union territory. A draft will be prepared after we have heard so many groups and the persons. A draft of the delimitation will be prepared. Inputs of the associate members who are part of the commission will also be taken before draft is made public. Thereafter, draft recommendations will be put in public domain for comments. This is a very important thing which I would like to share with the media. That after hearing all these persons and after hearing the associate members also, a draft will be prepared which will be put in the public domain for their comments or their concerns or their particular thing. And only after seeing all that the comments on that particular draft, the final draft will be prepared. तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें, फरवरी में पेश आए शुमाल मशरिकी दिल्ली फसाद के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जामिया मिलिया इस्लामिया की तलबा गुलफिशा फातिमा की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुलफिशा फातिमा की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। यूएपीए के तहत गुलफिशा फातिमा की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। तो ये पूरा मामला फरवरी का है जब शुमाल मशरिकी दिल्ली में फसाद भड़के थे और इसी मामले में यूएपीए के तहत कई तलबा की गिरफ्तारी की गई थी। जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा की गिरफ्तारी की गई थी। उसी में से एक तलबा गुलफिशा फातिमा की अर्जी को, जमानत की अर्जी को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे से। सुशील पांडे, किस बिना पर, क्या वजह बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अर्जी को खारिज किया?
जी देखिए, गुलफिसा फातिमा ने दिल्ली हाईकोर्ट में हाईवेज कॉर्पस अर्जी दाखिल की थी और ये कहा था कि इस पूरे मामले में लंबे समय से दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन जो प्रोसीजर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लिहाजा इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि इस पूरे मामले में अभी जांच जो है वो चल रही है, लिहाजा जमानत नहीं दी जानी चाहिए। बहरहाल निचली अदालत ने भी उनकी जमानत अर्जी को पहले खारिज किया था, क्योंकि गुलफिसा फातिमा पर आरोप ये है कि उन्होंने साजिश रची थी, दिल्ली दंगों के दौरान लोगों को भड़काने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की थी, जिस पूरे मामले में एक बड़ा सिंडिकेट बनाया गया था और एक बड़े स्तर पर लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। बहरहाल इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में उनके वकील के द्वारा जो दलीलें दी गई, उस दलील से दिल्ली हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ और वजह यही रही साहिबा की जिसकी वजह से इनको जमानत फिलहाल अभी नहीं मिली। तो क्या लगता है जो गुलफिसा फातिमा के वकील हैं वो दोबारा अपील करेंगे? जी देखिए, वो उनका अपना अधिकार है। वो फिलहाल इस पूरे मामले को देखने के बाद वो जमानत अर्जी दोबारा हाईकोर्ट में दाखिल करते हैं या फिर नहीं दाखिल करते हैं, ये फिलहाल वही तय करेंगे। लेकिन चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है, तो निश्चित रूप से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे इस पूरे मामले में जमानत को लेकर। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जमानत अर्जी कब दाखिल करते हैं। बहरहाल दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल इस पूरे मामले में गुलफिसा फातिमा को राहत नहीं मिल पाई है। चलिए, तो गुलफिसा फातिमा को राहत नहीं मिल पाई है। वहीं इस मामले में यूएपीए के तहत ही कई मामले और दर्ज किए गए थे जिन लोगों को जमानत भी मिली है। तो इस मामले में देखना होगा कि गुलफिसा फातिमा के वकील आगे क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। यानी सुशील पांडे, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के मामलों को रोकथाम के लिए कानून वज़े करने का मुतालबा किया जा रहा है। महाराष्ट्र में वंचित अघाड़ी मोर्चा की क़यादत में मुख्तलिफ समाजी और मिल्ली तंजीमें सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक बिल का मसूदा तैयार कर लिया गया है और इसे रियासती हुकूमत को सौंप दिया गया है। रजा एकेडमी और वंचित बहुजन अघाड़ी ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत महाराष्ट्र से ये मुतालबा किया है कि हुजूर अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और साहबा कराम, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन, कुरान पाक की आए दिन तौहीन होती है। तो हुकूमत महाराष्ट्र एक कानून बनाए कि कोई भी किसी भी मजहबी पेशवा की तौहीन न करे और अगर वो करता है तो उसके ख़िलाफ़ सख्त कानून बनाया जाए, जो नॉन अवेलेबल हो उसकी सज़ा बढ़ाई जाए। अगर ये कानून बन जाता है तो उससे दो फ़ायदे होंगे कि पूरे मुल्क में इस किस्म के कानून बनेंगे हर सूबे में, और मरकज़ से भी हमारी गुजारिश है कि मरकज़ भी इस कानून को बनाए। ये कानून बनने से जो बदअमनी फैलती है, हज़ारों और लाखों लोगों की दिल आज़ारी होती है, तो वो नहीं होगी, अमन व अमान कायम रहेगा। इजहार राय की आजादी अब दिल आजारी बनती जा रही है। सोशल मीडिया जाती राय का प्लेटफॉर्म है, तो आज इसी प्लेटफॉर्म पर किसी फर्द या फिरके के ऑनलाइन बेइज्जती भी की जा रही है। हर कोई दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर इस मकरूआ फाल में किसी न किसी हद तक डूबा हुआ है। ऐसी ही एक प्लेटफॉर्म का बदनुमा चेहरा गुज़िश्ता दिनों सामने आया है। सुल्ली डील्स नामी ऑक्शन ऐप पर मुस्लिम खवातीन की मश्कशुदा तस्वीरें और मालूमात ऐप पर अपलोड कर दी गई। उन्हें हरासा करने, डराने धमकाने और उनकी आवाज को दबाने की नीयत से ये सब किया गया। एडिटर गिल्ड ने इसको संजीदगी से लेते हुए कौमी खवातीन कमीशन से मामले में कुछ करने को कहा है। खवातीन कमीशन ने इस बारे में दिल्ली पुलिस से शिकायत की है और मामले की जांच का मुतालबा किया है। हमने ये नोटिस करा कि एक वेबसाइट है जिसका नाम है सुल्ली ऐप। उस वेबसाइट के ऊपर मुसलमान लड़कियों को बेचा जा रहा था। उनकी फोटोज को चुराकर एक अलग ही तरीके से, गंदी तरीके से ये कहा जा रहा था कि डील ऑफ द डे कौन सी मुसलमान लड़की चाहिए। ये बहुत ही गलत है और इसको किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इसीलिए दिल्ली महिला आयोग ने कल दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करा कि इस पे अभी तक एफआईआर क्यों नहीं करी है, इसके ऊपर अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया है, कौन अरेस्ट करा है, इस पे पूरा एक्शन होना चाहिए। और आज बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने एक एफआईआर दर्ज करी है और इसके ऊपर एक्शन हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे जो भी लोग हैं उन्हें अरेस्ट करके सख्त से सख्त सजा देने की जरूरत है, क्योंकि देश में, इंडिया में ये बर्दाश्त नहीं है।
यूपी में ब्लॉक पंचायत में हुए तशद्दुद पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ यूपी में गुंडों को बढ़ावा दे रहे हैं, यहां तक कि रियासत में स्पीकर और अरकान असेंबली भी महफूज नहीं है। उत्तर प्रदेश की सबसे सम्मानित विधानसभा के सबसे सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, जब उन्हें अपमानित होना पड़ा हो, अपने नामांकन, अपने पर्चा फाइल करने के लिए उन्हें पुलिस प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों का सामना करना पड़ा हो, जब स्पीकर सुरक्षित नहीं, विधायक सुरक्षित नहीं, और हमारी जो बहन है, क्या उसकी गलती यही तो थी, वो समर्थक थी, या अपनी बहन का सहयोग करने के लिए ब्लॉक प्रमुख के पर्चे भर जाए, उसके लिए तो आखिरकार कौन है हिम्मत बढ़ा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की? ये मुख्यमंत्री जी बताएं, आखिरकार ये गुंडों को खुली छूट किसने दी है? मजीद बातचीत करेंगे इसी मामले पर हमारे नुमाइंदे तारिक अनवर से, जो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तारिक अमर, जिस तरीके का ये ताजा मामला सामने आया है, ब्लॉक लेवल पंचायत इलेक्शन हुए और तशद्दुद का मामला सामने आया, तो ऐसे में यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत-ए-हाल है उस पर सवाल खड़ा होना लाजमी हो जाता है। इसकी सबब बुनियादी बात यही है कि जो उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो कोई आज खराब नहीं हुई है। आप गुज़िश्ता 3-4 साल से राजनीति तो मालूम ये होगा कि अगर पुलिस के जो रिपोर्ट निकलवाए आए तो उसमें मालूम होता है जराइम बहुत कम हुआ है, लेकिन असली मंजरनामा इससे बिल्कुल बरस नजर आता है। मालूम होता है कि जराइम ने अपनी सीमाओं को पार किया है। लेकिन पंचायत इलेक्शन के पस मंजर में जो कुछ भी मंजरनामा सामने आया है उसमें सिर्फ अखिलेश यादव ने राजनीति नहीं की है या कोई पेशकश नहीं की है, बल्कि आप देखिए ये प्रियंका ने तौर पर ट्वीट करके बताया था कि किस अंदाज से जमहूरियत के जो कहते हैं उसको पामाल किया जा रहा है, किस अंदाज से तशद्दुद से सर उठा दिया है। इसके अलावा मायावती ने साफ तौर पर ये कहा था क्योंकि सरकारी मशीन का इस्तेमाल हो रहा है इसलिए हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इन तमाम अहम सियासी जमातों के साथ साथ आपने जो पेशरफ्त की थी वो भी बहुत अहम थी। आपने तो बाकायदा तौर पर ये मुतालबा किया था कि इन इलेक्शन को इन तमाम तर जो चीजें हैं इनको महसूस किया जाए। नॉमिनेशन से लेकर और नताइज तक का जो मंजरनामा है वो कहीं ना कहीं ये बताता है। और तारिक अमर, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये पूरा सीन दिख रहा है, पंचायत इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, ऐसे टाइम पे जो सेंटर्स होते हैं वहां पर पुलिस की मौजूदगी लाजमी होती है, तो तस्वीरों में हमें पुलिस की मौजूदगी भी नहीं नजर आ रही है। तो ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल करने के या इस तरीके की सिचुएशन के लिए किसको जिम्मेदार माना जाएगा? देखिए, जहाँ तक सिस्टम का ताल्लुक है तो सिस्टम में जो लोग काम करते हैं वो कहीं ना कहीं हुकूमत के जेर असर होते हैं जी। और पुलिस का जो मामला है तो वो इस कदर मशकूक हुआ है कि वो यकीनी पुलिस से उठता जा रहा है। आपने लखीमपुर का मामला देख लिया, किस अंदाज से किस अंदाज से स्नैचिंग होती है, बार बार मुतालबात के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। अखिलेश यादव आवाजें उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अरकान आवाजें उठा रहे हैं, कांग्रेस के अरकान सड़कों पर उतरकर मुतालबा कर रहा है, लेकिन जैसे हुकूमत ने ये फैसला कर रखा है कि शायद तो एक निजाम है वो ऐसे ही बरकरार रहेगा, उसमें तब्दीली की जरूरत हुकूमत नहीं कर रही है। तो ये मंजरनामा अपने आप में अफसोसनाक होते हुए ये बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर अगर लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुब्तला हो जाएंगे तो फिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन संभलेगी, कैसे जमहूरी कदरों की बाजियाब को यकीनी बनाया जाएगा, कैसे अमन पसंद शहरी सुकून से रह सकेंगे। बात यहाँ पर सियासत की नहीं है, बल्कि अहम बात उन लोगों की है जो वाकई हिंदुस्तान को एक जमहूरियत के तौर पर एक बहुत खूबसूरत मुल्क मानते हैं, जहाँ मानते हैं कि आईन और कानून की बालादस्ती है। उन लोगों के जो जहन पर सवाल उठ रहे हैं वो बहुत तशवीशनाक है। तो जरूरत की बात थी कि कहीं से वज़ीर-ए-आला को उनकी हुकूमत के जिम्मेदार अफसरान को सख्त इक़दाम करने होंगे जिससे कम से कम अवामी जो यकीन है वो बहाल हो सके और फिर आइंदा असेंबली इलेक्शन है वो यकीन की फज़ा में सम्मान हो सके। बिल्कुल, जो लखीमपुर का ये वाकया पूरा पेश आया वहां पर कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पे तो सवाल उठते ही हैं, तो वहीं खवातीन की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एक खवातीन को परेशान किया जा रहा है। तारिक अमर, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।
आगे बढ़ेंगे। मरकजी काबीना में हुए रद्दोबदल और तौसी पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि काबीना के हवाले से कोई फैसला लेने के पीएम मिजाज है, लेकिन जिस तरह वजीर सेहत की छुट्टी की गई है उससे लगता है कि खुद पर लग रहे दाग को धोने की कोशिश की गई है। तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। सर, सरकार ने एक बड़ा रीशफल किया है, न सिर्फ राजनीतिज्ञ बल्कि कई अलग अलग क्षेत्र के लोगों को भी मौका दिया है इस रीशफल में काम करने का। किस तरह से मोदी सरकार के इस नए जो फेरबदल हुए हैं कैबिनेट में उसको आप देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, वो जैसे मंत्रिमंडल चाहें, अब जैसी टीम बनाना चाहें बनाएं, लेकिन अभी सब लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। एक तो स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से हटाया गया, तो ये सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर जो आरोप था कि कोरोना के समय में जिस तरह से एक कहा जाए कि नेगलेक्ट किया गया, सारी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई, उसके बाद ये जो स्वास्थ्य मंत्री को हटाना, अपना इल्ज़ाम जो अपना दोष था उसको स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर एक तरह से थोपने की कोशिश की गई है। बाकी जो मंत्रिमंडल बनाया गया है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, या 5 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उसका ध्यान में रखा जा रहा है। तो ये चुनावी रद्दोबदल है और इस बात को लोग समझ रहे हैं। इस नई टीम में आपके भी पुराने साथी हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और उनको नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। उस पर कटाक्ष किया है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने। उन्होंने ये लिखा है कि रब ने बना दी जोड़ी, जो मंत्रालय उनको दिया गया है उसमें सब बिका हुआ है। देखिए, बात वो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है तो, या जो एग्जाम्पल दिया है, जो उदाहरण दिया है, ठीक ही दिया है। जहाँ तक सबको पता है, जो राजनीति से परिचित हैं उनको पता है कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, चुनी हुई एक सरकार थी, लोकतांत्रिक ढंग से चुनकर सरकार आई थी, लेकिन उसको गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसमें सिंधिया जी सहयोगी रहे और आज उसकी कीमत उनको मिली है। कीमत अच्छी मिली है? मैं नहीं समझता हूँ कि कोई उनको भारी भरकम मंत्रालय दिया गया है। आज सिविल एविएशन की कोई बहुत अच्छी स्थिति है, नहीं है। सब लोग जानते हैं कि एयर इंडिया बिकने वाला है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए से तजावुज कर गई है। वहीं घरेलू गैस, सीएनजी और अशियाए जरूरिया की कई चीजों की कीमतों में इजाफा हुआ है। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज दिल्ली में कांग्रेस ने एहतजाज किया, जहां कांग्रेस ने दस्तखती मुहिम चलाई। कांग्रेस कारकुनान ने मरकजी और दिल्ली हुकूमत के खिलाफ सख्त अल्फाज में तनकीद की। देखिए, आप देख सकते हैं जिस भी हमने व्यक्ति से बात की उनका दर्द है। आज एक टैक्सी ड्राइवर जो केवल ड्राइव करता है, हालांकि पेट्रोल डीजल का भार जो उसके मालिक पे, जब उससे हमने बातचीत की तो उसका भी दर्द है कि सर ये जो रेट बढ़ते हैं उसका हमारे दाल आटे तेल पे भी फर्क पड़ता है, सैलरी तो हमारी बढ़ती नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई का सीधा संबंध पेट्रोल डीजल से, ये हम नहीं कहते थे बल्कि ये जो आज सत्ता में बैठे लोग यही दावा किया करते थे। आज पेट्रोल 100 रुपये 55 पैसे हो चुका है, डीजल लगभग 90 रुपये पहुँच चुका है। टैक्स के रूप में टैक्स वसूली हो रही है। दिल्ली की सरकार ने पिछले 7 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए टैक्स से वसूले हैं। मोदी जी ने लगभग 20 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है? सवाल ये उठता है, जो लोग तेल का खेल के दावे किए करते थे, आज वो खेल ये इतना बड़ी तादाद में कर रहे हैं कि जनता इस संक्रमण काल में परेशान है, रोजगार है नहीं, काम धंधे है नहीं, वहां पर महंगाई की मार। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो रसोई के ऊपर पड़ता है। आज गृहिणी की जो रसोई का जो बजट है वो गड़बड़ा गया है। आज गैस सिलेंडर की बात करें, तेल की हम बात करें, हर जगह तो लोग परेशान हैं। बच्चे घर बैठ करके ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के परेशान हैं। तो तमाम दिक्कतें हैं जिनको आज हमने दर्द को महसूस किया, सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। सरकार सुन नहीं रही, सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए, उसके खिलाफ कांग्रेस जन आज सड़कों पर है, लोगों के दर्द को साझा करके सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा था ऐसे, और जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बहुत बढ़े हुए थे, तब भी हिंदुस्तान में कंट्रोल रहे। 50 रुपये 60 रुपये पेट्रोल के दाम होते थे, आज तो 100 रुपये पहुँच गए और कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल बहरे हो रहे हैं। ये जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, खून चूस रहे हैं लोगों का। बेरोजगारी बढ़ रही है, घर में पैसा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बताइए, और इससे सब चीज़ों के दाम बढ़ेंगे।
तो ये बहरी सरकार को कोरोना की दूसरी लहर का कहर जैसे जैसे कम हो रहा है, लोग कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं। लोगों की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां लोग कोरोना की गाइडलाइंस की सरेआम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लोगों की लापरवाही पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी तशवीश का इजहार किया है। जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। कोरोना की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद कई जगहों पर भीड़ देखने के लिए मिल रही है और पिछले दिनों जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई और उस तस्वीरों में ये साफ तौर से देख सकते थे कि लोग किस तरीके से कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भूल चुके हैं, सामाजिक दूरी को भूल चुके हैं, यहाँ तक कि मास्क लगाना भी भूल चुके हैं। और इसी सारी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से मंत्रिमंडल के साथ बैठक की और उसमें ये चिंता भी जताई है, उनका कहना है कि लोग अब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को भूल चुके हैं और लोगों की ये लापरवाही एक बड़ी महामारी को फिर से चुनौती दे सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 से पूरा देश लड़ रहा है और अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह हो जाएंगे तो हम इस लड़ाई को कमज़ोर कर देंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी चिंता जाहिर की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रति इतने लापरवाह आखिर क्यों हो गए हैं। अगर घरों से बाहर उन्हें निकलना है, काम के लिए जाना है तो वो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें तमाम चीज़ों का ध्यान रखना होगा, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही लगातार सरकारें भी लोगों से यही अपील कर रही हैं कि जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करते रहे, क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेट हो रहा है और तीसरी कोविड की लहर की संभावना भी जताई जा रही है। तो ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो कोविड के SOPs है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें और कोविड की लड़ाई को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में अपना योगदान करें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।